آج ہم ایک ایسی سرمایہ کاری اسکیم پر آپ کہہ لیں تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں جو پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے اہم ہے، خاص طور پر بزرگ شہریوں، بیوہ خواتین اور معذور افراد کے لیے۔ جی، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس یعنی BSc۔ بالکل، اور خاص طور پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR ان سرٹیفکیٹس پر ایڈوانس ٹیکس کے حوالے سے آج کل کیا کر رہا ہے۔ جی، اور یہ جو ہماری بات چیت ہے یہ ٹیکسیشن پی کے ویب سائٹ پر ایک مضمون چھپا تھا، اس پر مبنی ہے۔ صحیح۔ مقصد یہی ہے کہ اس اسکیم کو اچھی طرح سمجھیں، یہ ہے کیا، اس کی خاص باتیں کیا ہیں، کون فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور سب سے ضروری ٹیکس کا معاملہ کیا ہے، خاص کر یہ جو ایڈوانس ٹیکس کی بات چل رہی ہے۔ بالکل، کیونکہ FBI کی طرف سے جو یہ ایڈوانس ٹیکس کے نوٹسز آنا شروع ہوئے ہیں، اس سے کافی لوگ سرمایہ کار پریشان ہیں۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں کیا؟ جی، یہ حکومت پاکستان کی ایک خاص بچت اسکیم ہے، 2003 میں شروع ہوئی تھی۔ اچھا، 2003 میں؟ جی، اور اس کا بنیادی مقصد تھا معاشرے کے وہ طبقات جو آپ کہہ لیں نسبتاً کمزور ہیں، جیسے بزرگ شہری ہو گئے یا وہ بیوہ خواتین جنہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور معذور افراد۔ ان کے لیے؟ جی، ان کو مالی تحفظ دینا، ان کو سہارا دینا۔ یہ بنیادی طور پر ایک محفوظ سرمایہ کاری کا طریقہ ہے، اور اس میں منافع کی شرح بھی اچھی رکھی گئی ہے، اور کچھ ٹیکس کے فائدے بھی ہیں۔ محفوظ اور پرکشش منافع، یہ تو واقعی اہم باتیں ہیں۔ تو ان کی خاص خصوصیات کیا ہیں؟ جیسے منافع کتنا ملتا ہے؟ دیکھیں، اپریل 2025 تک جو معلومات ہیں اس کے مطابق سالانہ منافع کی شرح 15.36% ہے۔ 15.36%؟ جی، اس کو اگر آسان کریں تو ہر 1 لاکھ روپے اگر آپ لگاتے ہیں تو اس پر ماہانہ 1280 روپے منافع بنتا ہے۔ 1280 روپے ماہانہ فی لاکھ؟ بالکل، اور یہ منافع ہر مہینے ملتا ہے، جس تاریخ کو آپ خریدیں گے اس کے ٹھیک 1 مہینے بعد سے۔ یہ تو بہت اچھا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہیں ہر مہینے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے اخراجات کے لیے۔ اچھا، کیا کوئی حد بھی ہے کہ ایک بندہ کتنے پیسے لگا سکتا ہے اس میں؟ جی ہاں، حد ہے۔ اگر کوئی اکیلا انفرادی طور پر سرمایہ کاری کر رہا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 7.5 ملین روپے یعنی 75 لاکھ روپے لگا سکتا ہے۔ 75 لاکھ؟ جی، اور اگر 2 اہل لوگ مل کر یعنی جوائنٹ اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ حد ڈبل ہو جاتی ہے، 15 ملین روپے یعنی 1.5 کروڑ روپے۔ 1.5 کروڑ تک۔ اچھا، اور یہ خریدنے کے لیے کتنی مالیت کے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں؟ کیا کم پیسوں سے بھی شروع کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ مختلف مالیت ڈینومینیشنز جسے کہتے ہیں میں آتے ہیں، تاکہ ظاہر ہے ہر کوئی اپنی جیب کے حساب سے لے سکے۔ یہ 5,000 روپے سے شروع ہوتے ہیں۔ 5,000 سے بھی؟ جی، 5,000، 10,000، 50,000، پھر 1 لاکھ، 5 لاکھ اور 10 لاکھ روپے تک کے سرٹیفکیٹ ہیں۔ ٹھیک، آپ نے ٹیکس فوائد کا بھی ذکر کیا تھا، وہ کیا ہے؟ اور زکوٰۃ کا کیا حساب ہے؟ یہ باتیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ جی، یہ ان سرٹیفکیٹس کا ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ ان سے جو منافع ملتا ہے نا، اس پر ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں کٹتا۔ اچھا، ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں؟ جی، وہ ٹیکس جو منافع دیتے وقت ہی کاٹ لیا جاتا ہے وہ اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہ بینک ڈپازٹس وغیرہ سے ایک بڑا فرق ہے۔ صحیح۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سرمایہ کاری زکوٰۃ سے بھی مستثنیٰ ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں کٹتی۔ واہ، یہ تو واقعی زبردست ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں۔ جی بالکل۔ اور جہاں تک حفاظت کی بات ہے، یہ مکمل طور پر محفوظ ہیں، کیونکہ ان کی گارنٹی آپ کہہ لیں ضمانت خود حکومت پاکستان دیتی ہے۔ اچھا، آپ کا اصل پیسہ اور اس پر ملنے والا منافع دونوں محفوظ ہیں۔ تو جو لوگ اس میں پیسے لگاتے ہیں، خاص کر جو بزرگ یا بیوہ خواتین ہیں، ان کے لیے ذہنی سکون بہت اہم ہے۔ یہ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ کون لوگ یہ خرید سکتے ہیں، اہلیت کیا ہے؟ کیا یہ ہر کسی کے لیے ہے؟ نہیں، یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ خاص گروپس کے لیے ہیں۔ ان میں شامل ہیں ایک تو بزرگ شہری، جن کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر بیوہ خواتین، لیکن شرط یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ شادی نہ کی ہو۔ ٹھیک، یہ شرط ہے۔ جی۔ تیسرے، معذور افراد، جن کے پاس وہ خاص شناختی کارڈ ہوتا ہے نا نادرا کا، جس پر معذوری کا لوگو بنا ہو۔ جی جی۔ چوتھے، خصوصی نابالغ یعنی معذور بچے، ان کے گارڈین یا سرپرست کے ذریعے۔ اچھا۔ اور پانچواں، جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں جیسے پہلے بتایا، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں لوگ اہل ہوں،
مثلاً 2 बुजुर्ग शहरी मिलकर या एक बुजुर्ग और एक बेवा खातून मिलकर। समझ गई। तो फोकस उन लोगों पर है जिन्हें शायद इजाफी माली मदद की जरूरत हो। अच्छा, अब जरा टैक्स वाले मामले को और खंगालते हैं। आपने शुरू में एफबीआर के नोटिस का जिक्र किया था, तो टैक्स लगता कैसे है अगर विदहोल्डिंग टैक्स है ही नहीं? हाँ, ये अहम सवाल है और अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, बहबूद सर्टिफिकेट से जो मुनाफा मिलता है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 7B में नहीं आता। 7B में नहीं आता? जी नहीं, सेक्शन 7B उमूमन प्रॉफिट ऑन डेट पर लगता है, जैसे बैंक डिपॉजिट्स वगैरह का मुनाफा। उसकी शरहें भी अलग हैं। बहबूद का मुनाफा आता है नॉर्मल टैक्स रिजीम यानी NTR के तहत। नॉर्मल टैक्स रिजीम, NTR। इसका क्या मतलब हुआ आम आदमी के लिए? कोई पेचीदगी है इसमें? NTR का मतलब ये है कि ये मुनाफा आपकी सालाना कुल काबिले टैक्स आमदनी में जमा होता है और फिर आपकी टोटल आमदनी पर जो टैक्स स्लैब लागू होता है उस हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन कोई खास बात? जी, यहाँ एक बहुत बड़ी रियायत है। बहबूद सर्टिफिकेट्स के मुनाफा पर जो टैक्स लगेगा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा शरह मतलब मैक्सिमम रेट सिर्फ 5% है। सिर्फ 5%? ये तो बहुत कम है। जी बिल्कुल, चाहे आपकी कुल आमदनी करोड़ों में क्यों ना हो और आप सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में ही क्यों ना आते हो, बहबूद वाले मुनाफा पर टैक्स 5% से ज़्यादा नहीं होगा। ये खास रियायत क्यों है, जबकि बैंक मुनाफा वगैरह पर तो अलग हिसाब होता है? वजह वही है कि हुकूमत इस स्कीम को इन मखसूस तबकों यानी बुजुर्ग, बेवा, माजूर अफराद के लिए पुरकशिश रखना चाहती है। ये एक तरह की इजाफी सहूलत है इनके लिए। बैंक मुनाफा पर तो फाइलर, नॉन फाइलर की अलग शरहें हैं और वो अमूमन इस 5% से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अच्छा, तो विदहोल्डिंग टैक्स नहीं, ज्यादा से ज्यादा टैक्स सिर्फ 5%? फिर ये एफबीआर नोटिस क्यों भेज रहा है एडवांस टैक्स के? ये क्या मामला है, ये थोड़ा समझाएं। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर आया है। यही वो बात है जो आजकल सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। ये जो एडवांस टैक्स है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 147 के तहत आता है। सेक्शन 147? जी, और यहाँ सबसे अहम बात समझने की ये है कि ये टैक्स बहबूद सर्टिफिकेट के मुनाफा पर नहीं लग रहा, अच्छा, बल्कि ये आपकी कुल सालाना काबिले टैक्स आमदनी की बुनियाद पर लग रहा है। अगर किसी शख्स की तमाम ज़राए से मतलब बहबूद का मुनाफा मिलाकर, तनख्वाह, किराया, बिजनेस, सब कुछ मिलाकर कुल काबिले टैक्स आमदनी एक माली साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है। 10 लाख रुपए से ज्यादा? जी, 1 मिलियन रुपए। अगर इससे तजावुज़ कर जाए तो उस शख्स पर सेक्शन 147 के तहत एडवांस टैक्स देना लाजिम हो जाता है। ओ, तो मतलब ये बहबूद सर्टिफिकेट की वजह से नहीं, बल्कि ये टोटल इनकम अगर 10 लाख क्रॉस कर गई तो ये लागू होगा। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम सालाना 10 लाख या इससे कम है तो आप पर कोई एडवांस टैक्स नहीं बनता, चाहे आपको बहबूद से 8 लाख का मुनाफा ही क्यों ना आ रहा हो। ये तो बहुत बड़ी वजाहत है। तो जिनकी आमदनी 10 लाख से ऊपर चली जाती है, उनको फिर ये एडवांस टैक्स देना पड़ेगा? जी, इनको देना पड़ेगा। एफबीआर के नोटिसेस भी शायद इन्हीं लोगों को जा रहे हैं जिनकी रिटर्न से या एफबीआर के पास जो डेटा है उससे जाहिर हो रहा है कि उनकी कुल आमदनी 10 लाख से ज़्यादा है और उन्होंने एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया। तो ये टैक्स कितना होता है और कैसे देना होता है? इसका हिसाब निस्बतन सीधा है। कानून कहता है कि आपने पिछले साल जो टैक्स रिटर्न फाइल किया था उसमें जो आपका कुल टैक्स बना था, टैक्स असेस्ड, या अगर पहला साल है तो जो अंदाज़न इस साल बनेगा, एस्टिमेटेड टैक्स, इस रकम को 4 से तकसीम करें। 4 से? जी, 4 बराबर हिस्सों में, और हर सहमाही यानी हर 3 महीने बाद आपको वो एक हिस्सा एडवांस टैक्स के तौर पर जमा करवाना होता है, सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून की मखसूस तारीखों तक। अच्छा, ताकि साल के आखिर में इकट्ठा बोझ ना पड़े। बिल्कुल, साल भर में थोड़ा थोड़ा करके अदा हो जाए। कोई मिसाल देकर समझा सकते हैं ताकि सुनने वालों को आसानी हो? जी जरूर, 2 मिसालें लेते हैं। फर्ज करें एक बुजुर्ग शहरी है, उनकी आमदनी सिर्फ और सिर्फ बहबूद सर्टिफिकेट से है और वो सालाना 8 लाख रुपए है। ठीक, सिर्फ बहबूद से 8 लाख? जी, अब चूंकि उनकी कुल काबिले टैक्स आमदनी 8 लाख 10 लाख रुपए की हद से कम है तो उन पर सेक्शन 147 लागू नहीं होगा, कोई एडवांस टैक्स नहीं। सही, वो महफूज है। बिल्कुल। अब दूसरी मिसाल, एक बेवा खातून है, उनको किराए से सालाना 8 लाख रुपए आते हैं और साथ ही उन्होंने बहबूद सर्टिफिकेट्स में भी सरमायाकारी की हुई है जहां से उन्हें सालाना 3 लाख रुपए मुनाफा मिलता है। ठीक है,
8 लाख किराया, 3 लाख बहबूद से। जी, तो उनकी कुल सालाना आमदनी कितनी हुई? 8 जमा 3 यानी 11 लाख रुपए। 11 लाख, ये 10 लाख से ज्यादा हो गई। बिल्कुल। चूंकि ये रकम 10 लाख की हद से तजावज कर गई है, तो उन पर सेक्शन 147 लागू होगा। उन्हें अपनी कुल मुतवक्का टैक्स जिम्मेदारी का हिसाब लगाकर उसका चौथा हिस्सा हर छमाही में एडवांस टैक्स के तौर पर जमा करवाना होगा। ये मिसालें तो वाकई मामले को साफ कर देती हैं। अच्छा, तो अगर हम इन सर्टिफिकेट्स के सारे फवाइद को एक जगह जमा करें तो खुलासा क्या होगा? जी, मुख्तसरन 4 बड़े फायदे हैं। पहला, अच्छा और मुस्तकिल मुनाफा। फिलहाल 15.36% सालाना जो हर महीने मिलता है। ठीक। दूसरा, टैक्स में बड़ी रियायतें। विद होल्डिंग टैक्स नहीं, ज़कात नहीं और इनकम टैक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5%। जबरदस्त। तीसरा, इंतहाई महफूज सरमायाकारी, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जामिन है, पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं। जी। और चौथा, इसका माशरती मकसद, खास तौर पर बुजुर्गों, बेवाओं और माजूर अफराद को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाना। ये फवाइद तो बहुत वाज़ेह है। अब आखिरी सवाल, जो अमली नौयत का है। अगर कोई अहल शख्स है और वो ये सर्टिफिकेट खरीदना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? तरीका क्या है? तरीका ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ कागजात पूरे होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने करीब तरीन नेशनल सेविंग सेंटर यानी NSC जाना होगा। कौमी बचत मरकज। जी, कौमी बचत मरकज। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, SC1 फॉर्म। वो लेकर एहतियात से भरना होगा। ठीक है। फॉर्म के साथ कुछ कागजात लगाने होंगे। वो इस बात पर मुनसिर है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर बुजुर्ग शहरी हैं तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी। ठीक। अगर बेवा खातून हैं तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी, शौहर का डेथ सर्टिफिकेट और एक हल्फनामा या बयान हल्फी कि आपने दूसरी शादी नहीं की। अच्छा, बयान हल्फी भी। जी, अगर माजूर फर्द हैं तो वो खास शनाख्ती कार्ड जिस पर माजूरी का निशान हो। सही। और अगर किसी माजूर बच्चे के लिए ले रहे हैं तो सरपरस्त का शनाख्ती कार्ड और बच्चे का माजूरी का सबूत जैसे कोई सर्टिफिकेट। समझ गई। उसके बाद आप बताएंगे कि कितनी रकम के और कौन कौन सी मालियत के सर्टिफिकेट चाहिए। वो जो हद बताई थी 75 लाख या 1.5 करोड़, उसके अंदर रहते हुए। जी। ये फॉर्म और कागजात आप जमा करवा देंगे, वो तस्दीक करेंगे और फिर आपके नाम पर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। और मुनाफा कब से मिलना शुरू होगा? जिस दिन आप खरीदेंगे उस तारीख से ठीक 1 महीने बाद पहला मुनाफा आपके अकाउंट में आ जाएगा या आप वसूल कर सकेंगे। बहुत खूब। ये तफसीलात वाकई कारआमद हैं। तो आज की इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये निकला कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पाकिस्तान में जो अहल अफराद हैं, ख़ास तौर पर बुजुर्ग, बेवा ख़वातीन और माजूर अफराद, उनके लिए एक महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का बहुत अच्छा जरिया है। जी बिल्कुल। उनमें अच्छा माहाना मुनाफा है, विदहोल्डिंग टैक्स और ज़कात की छूट है, और मुनाफा पर इनकम टैक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5% है, और हुकूमती ज़मानत तो है ही। जी, लेकिन साथ ही ये समझना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, ख़ास तौर पे FBR की हालिया कार्रवाइयों को देखते हुए, कि टैक्स कवानीन को हल्का नहीं लेना। बिल्कुल। अगर आपकी तमाम ज़राए से कुल सालाना काबिल टैक्स आमदनी 10 लाख रुपए से बढ़ जाती है, तो आप पर सेक्शन 147 के तहत एडवांस टैक्स लागू हो सकता है। इस बारे में जानना और कानून पर अमल करना बहुत अहम है, ताकि बाद में कोई जुर्माना या परेशानी ना हो। ये चीज़ अब पहले से ज़्यादा अहम हो गई है। सही कहा आपने। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक नुक्ता जिस पर वो खुद सोच विचार कर सकते हैं। जी, माखिज में जो FBR की जानिब से एडवांस टैक्स नोटिस का जिक्र है, इससे एक सवाल पैदा होता है। ये जो 10 लाख सालाना आमदनी की हद है एडवांस टैक्स के लिए, क्या इस शर्त के बाद और इसकी तामील में जो थोड़ी बहुत आप कह लें ज़हमत है, सेमाई हिसाब किताब और अदायगी की, जी। क्या उसके बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी इस हद के आसपास है या थोड़ी सी ज़्यादा है, क्या ये अब भी इतने ही पुरकशिश रहेंगे? दिलचस्प सवाल है। क्या ये 5% टैक्स और फिर एडवांस टैक्स की अदायगी उनकी माहाना प्लानिंग पर ऐसा असर डाल सकती है कि वो शायद दूसरे कम पेचीदा सरमायाकारी के ऑप्शंस की तरफ देखने लगें? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपनी ज़ाती माली सूरत हाल के मुताबिक खुद ही ढूंढना होगा।